हाँ जी आज तक आप 4.1 ਤੇ 4.2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ 4.1 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ 4.2 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ 4.1 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ 4.3 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ फिर उन्होंने सॉल्यूशंस देखे हम की बनावांगे उन्होंने ग्राफ लाइक एज एक अपने को 6th एग्जांपल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ x + y = 7 ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ x + y = 7 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਦੱਸੋ ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਅੱਗੇ ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ अगर x को 0 पुट करते हैं चेक करो x को 0 पुट करो 0 + y = 7 y = कितना आ गया 7 आगे अगर y को 0 पुट करते हैं तो क्या आता है x + 0 = 7 x = कितना आ गया 7 तो ਇਹਦੇ टू सॉल्यूशन निकल गए वैसे ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਲੇਕਿਨ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 7 ਹੈ 7 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता चलता ये x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 y एक्सिस चलता चलता इधर नेगेटिव होंगे इधर भी नेगेटिव होंगे इधर ले लो y डैश इधर लिख दो x डैश x0 y7 अगर x 0 है तो कितने लोकेट करूंगा पॉइंट y एक्सिस ते होगा अगर x 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾਗਾ y एक्सिस ਤੇ x0 y7 तो पूरी आ गया अगर x0 है मतलब किससे हुआ y एक्सिस पे अगर y0 है तो किससे हुआ x एक्सिस पे अगर y0 है तो किससे हुआ x एक्सिस पे समझ सही x0 y7 आसी x7 y0 आसी ये दोनों को ज्वाइन करके ये बन गई अपनी लाइन ए होगा ना ग्राफ x + y = 7 ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6 x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 ਤੇ 1,6 ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਤਾਂ 2,5 ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕੀ ਜਦ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਲਾਈਨ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ x ਨੂੰ 0 करो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 4.2 ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ग्राफ बनाना इजी है x को 0 पुट करके y की वैल्यू कर ली y की 0 वैल्यू करके x की वैल्यू कर दी मतलब कुल मिला के सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे दो तीन सॉल्यूशन फाइंड कर लो 2 कर लो 3 कर लो 4 कर लो एज यू विश आंसर चेंज नहीं हुआ आंसर हो गया होगा एक ही लाइन आ जाएगी ओके जी ऊपर x + y = 7 लिखना जरूरी है पूरे दे कोऑर्डिनेट लिखने जरूरी है पूरे x ते x डैश पूरे y ते y डैश ओके जी नेक्स्ट 5th एग्जांपल है ये 6th एग्जांपल सी अगे 5th एग्जांपल की है 5th एग्जांपल है कि तुम कोई पॉइंट देता है 1,2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन व्हिच इट लाई कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन दसो जिस उत्ते ये लाई करता है कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन दसो जिस उत्ते ए वाला पॉइंट लाई करता है चेक कर लो x + y = 3 उत्ते पॉइंट लाई करता है x + y = 3 ਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 1,2 ਇਹਦੇ ਤੇ लाई करता है क्यों लाई करता है चेक कर लो सैटिस्फाई कर रहा है x ਨੂੰ 1 पुट करो y ਨੂੰ 2
y माइनस एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे ए पॉइंट उस पर भी लाई करूंगा चेक कर लो y ਨੂੰ 2 पुट करो x ਨੂੰ 1 पुट करो जब 2x इक्वल टू y का ग्राफ बनाओगे उस उत्ते भी यह पॉइंट लाई करूंगा क्योंकि 1,2 1,2 इस चो पास करने वाली काफी लाइन हो सकती है इनफाइनाइट मैनी लाइंस है एक पॉइंट चो पास करने वाली काफी सारी लाइन है इस करके इस ए वाला पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइंस ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 1 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ x + y = कह दो 2 - 1 कितना होता है 1 तो कह दो y - x = कितना है 1 कह दो कि 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x = ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 3 * 1 = 3 5 * 2 = 10 3 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਆਪਣੇ 3x + 5y = 30 ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ 1,2 ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यह जी कितनी लाइंस ने जिन्होंने ये सैटिस्फाई करूंगा ਆਪਾਂ कह ਦਾਂਗੇ इनफाइनाइट मैनी लाइंस होंगी जिन्होंने ये सैटिस्फाई करूंगा ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਲਓ ਲਾਈਕ ਅਸ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 1 ਜਾ 2 3 2 ਜਾਂ 6 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 8 ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 2x + 3y = 8 जब मर्जी लिख दो 1 चो 2 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा तो इक्वेशन बना दो x - y = -1 समझ आ गई क्या मर्जी पूछो मेरे पता है 1 + 2 + 3 कर दोगे मतलब x + y + 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 6 आ जब मर्जी बनाई चलो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बन जाएंगे तो क्वेश्चन किसी 1,2 किस लाइन से पास करता है 1,2 इतना सारी लाइंस से पास करता है ऐसी कितनी लाइंस हो सकती है यानी इनफाइनाइट मैनी लाइंस हो सकती है ओके जी फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया ग्राफ किवें बनाना है जस्ट सॉल्यूशन फाइंड करो पॉइंट्स ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ 1 + 2 3 ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ सेवंथ क्वेश्चन देखो सेवंथ क्वेश्चन क्लियर मुश्किल लगता है वाला क्वेश्चन क्यों मुश्किल लगता है स्टेटमेंट यदि मुश्किल है तो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं दिता है बट ध्यान नाल पढ़ो इसनू मैं स्टेटमेंट बोल रहा कि नहीं यू नोट दैट जैसा कि आपको पता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइंस कितने कि नहीं कितनी है चीज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हो जिमें कह रहे हैं मैं लिख रहा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा कि यू नोट दैट जैसा कि आपको पता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी किसी बॉडी पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन पता ही है जी फोर्स होंगी एक्सेलरेशन की होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कहने इक्वेशन बना दो कुछ भी नहीं क्या की बना दो जी इक्वेशन बना दो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ m1 m2 ਅਪਨ r ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m वगैरह जो भी a वगैरह जो भी है मतलब दोबारा सुनो सब कुछ क्वेश्चन करो यू नो दैट जैसा कि आपको पता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एक्सेलरेशन की
ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ F = ma। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ F = ma। क्यों बनता है फॉर्मूला? क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन दे ते प्रोपोर्शनल ਨੂੰ हटा के इक्वल लगा के एक कांस्टेंट लग जाता ਹੁੰਦਾ है। कांस्टेंट क्यों लगता है? क्योंकि प्रोपोर्शनल है। आई डोंट नो भी कितना का प्रोपोर्शनल है, वो 2 टाइम्स है, वो 3 टाइम्स है, वो 4 टाइम्स है, वो हाफ टाइम है, वो कितना टाइम है। प्रोपोर्शनल मतलब एक दिन इंक्रीज करना दूसरा इंक्रीज कर रहा है, बट कितना की इंक्रीज कर रहा है वो कांस्टेंट दस दिंदा है। मैं कुछ ज़्यादा साइंस के अंदर एंटर कर गया, तो जस्ट मैथ नाल रिलेट रहना है। इन्हें ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is directly proportional to acceleration ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਓ, 3 ਲੈ ਲਓ, 4 ਲੈ ਲਓ, 5 ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ है 7 जिवें तुसीं कहोगे ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 7, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਈ y। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ लगता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फिर कहते इक्वेशन बना दो। प्रोपोर्शनल ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਕੁਅਲ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। फोर्स ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ मैंने x, ਇਹ ਪਰ ਮੁਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैंने ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ 7। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ y। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, y ਕਿੰਨਾ ਜੂਆ 0। अगर x ਨੂੰ 0 पुट करके y 0 आ गया, तो हम y ਨੂੰ 0 नहीं पुट करांगे। अगर x ਨੂੰ 0 पुट करके y 0 आ गया, हम y ਨੂੰ 0 नहीं पुट करांगे। कुछ और पुट कर लो, लाइक एस 1 ਨੂੰ 1 y ਨੂੰ 1 पुट कर लो, x कितना आ गया 7। y ਨੂੰ लाइक एस 2 पुट कर लो, x कितना आ गया 14। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੋ। ग्राफ क्या बनाओगे? x की वैल्यू मैक्सिमम 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 11 12 13, ठीक है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 है। 1 x 0 y 0, x 7 y 1, x 14 y 2, x 7 y 1, x 14 y। इसी ग्राफ के बनाओगे 16 सारा बन जाओ। एक इधर ग्राफ हो गया x = 7। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन च आंसर दिता है सी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾ ਇਕੁਅਲ, ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ f ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ मैंने x, कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट जेड़ा मर्जी लगा सकते हो, तुसी 5 लगा दो, 6 लगा दो, 2 लगा दो। बुक वाले ने आई थिंक 5 लगा रखा, तुसी जो मर्जी लगा दो। तुसी 7 मान लिया, एक्सेलरेशन ले लिया y। ਹੁਣ इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या बनाओगे? x ਨੂੰ 0 पुट किया, y 0 आ गया। आगे y ਨੂੰ 0 पुट नहीं कर सकते, y ਨੂੰ 1 पुट करो, y ਨੂੰ 2 पुट करो, y ਨੂੰ 3 पुट करो, कुछ मर्जी पुट करो, तेरा ग्राफ में ओके जी। इसे डाउट इस क्वेश्चन डाउट है कि डॉक्टर बोलो ग्राफ को समझ ये सॉल्यूशन नहीं समझ रहा है, कल लेक्चर नहीं देख के आए, फिर नहीं समझाता तो देख रहा हूँ, फिर समझा लो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो 8th एग्जांपल, इस तो बात समझा दो, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन की है, 8th एग्जांपल सॉरी, it is from graph है क्यों ना फुल 8th एग्जांपल है, उन्हें ग्राफ दिता है। इस ग्राफ के उत्ते एक 0,0 पॉइंट दिता है, एक 1,2 पॉइंट दिता है, एक -1, -2 दिता है। कहते जो ग्राफ है ना वो किस इक्वेशन का है, जो ये ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। तो ऑप्शन दिते हुए ने x + y = 0 का ग्राफ है, y = 2x का ग्राफ है, y = x का ग्राफ है, y = 2x + 1। देखो एक पॉइंट से दा इनफाइनाइट लाइन पास होती है, लेकिन 2 पॉइंट्स से जस्ट इको ही लाइन पास हो सकती है। जे तुहानू एक पॉइंट दिता हुंदा ते तुहाडे तो पूछा हुंदा बई इस लाइन चो
इस पॉइंट चों किहड़ी लाइन पास होगी तो उत्थे काफ़ी सारे आंसर आ सकते सी x + y = 3 भी आ सकदा सी y - x = 1 भी आ सकदा सी लेकिन अगर तुहानू 2 पॉइंट दिते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पास करने वाली सिर्फ ਇੱਕੋ ही लाइन होगी क्योंकि 2 पॉइंट चों सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हो और लाइन तुसीं पास नहीं कर सकते। हुण आपां देखना है कि ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है जिस इक्वेशन ने इन्होंने सेटिस्फाई करता उसका ग्राफ हुआ पहले चलो 1 2 1 2 1 + 2 कितना आ गया 0 ਦੇ ਕੋਲ आया नहीं आया तो इसका ग्राफ नहीं पूरे पुट करो 1 पुट करो x की जगह पे 1 पुट करो 1 2 ठीक है y की जगह पे 2 x की जगह पे 1 इक्वल आया आ गया 0,0 पुट करके देखो ये ध्यान रखियो कदे एक पॉइंट पुट करके छड़ दो क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट सैटिस्फाई कर जे तो दूसरा पॉइंट सैटिस्फाई ना करे क्योंकि एक पॉइंट का काफी सारी लाइनें पास हो सकती ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों तीनों पॉइंट पास करके देखने पैणगे वैसे 2 कर दोगे इनफ है बढ़िया लगता है तो 3 कर दो 0,0 करो 0,0 करोगे 0 = 2 * 0 वो भी की कर गया सैटिस्फाई कर गया थर्ड भी पुट कर दो लगदे हाथ y ਨੂੰ -2 पुट किया x ਨੂੰ -1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ये भी सैटिस्फाई कर गया मतलब ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है समझ चली आगे उरे देखो जब y = x है 0,0 का सैटिस्फाई कर जुआ लेकिन 1,2 इन्हें सैटिस्फाई नहीं करता क्योंकि x ਨੂੰ 1 पुट करोगे y ਨੂੰ 2 पुट करोगे ये सैटिस्फाई नहीं करता सेम एज इस ਨੂੰ ਤਾਂ 0,0 इन्हें सैटिस्फाई करता पिया y ਨੂੰ 0 x ਨੂੰ 0 पुट करोगे 0 + 1 0 = 1 नहीं होगा ये भी सैटिस्फाई नहीं करता पिया मतलब यही जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है समझ चली डाउट है ये तो ग्राफ देता है कि जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है पर जेडे पॉइंट है इक्वेशन सैटिस्फाई कर जाए उसका ग्राफ होगा ओके हुन अगला ग्राफ दसदा और तुसी दसोगे इस दे उत्ते लाइक करना है एक 0,4 पॉइंट है एक 1,6 पॉइंट है एक -2,0 हाँ जी x + y = 0 सैटिस्फाई करता है x + y = 0 ने सैटिस्फाई करता है नहीं करता क्यों नहीं करता चेक कर लो 0,4 ही चेक लो 0 + 4 = 0 कि 4 = 0 होता है नहीं होता तो सैटिस्फाई नहीं करता आगे y = 2x सैटिस्फाई करता है y नो 4 x नो 0 पुट करके देखो y नो 4 x नो 0 पुट करके देखो 4 = 0 नहीं सैटिस्फाई करता कि y = 2x + 4 सैटिस्फाई करता है x नो 0 ते y नो 4 पुट करके देखो y नो 4 ते x नो 0 सैटिस्फाई कर गया लेकिन एक ना तुसी सैटिस्फाई नहीं होना दूसरा पॉइंट पुट करके देखो y नो 6 ते x नो 1 हुन सैटिस्फाई हो जो इक्वल आ गया तो हम सैटिस्फाई हो गए मतलब जो यही ग्राफ है किस इक्वेशन का है इस इक्वेशन का ग्राफ समझ सकी क्लियर है थर्ड पार्ट 2, 0 1, -2 -1, -4 -1, -6 हाँ जी कि x + y = 0 सैटिस्फाई करता पे है 2, 0 पुट करके देखो x नो 2 y नो 0 नहीं करता वैसे कि y = 2x सैटिस्फाई करता पे है x नो 2 ते y नो 0 कि y = 2x + 1 नु सैटिस्फाई करता पे है y नो 0 पुट करना x नो 2 y नो 0 पुट करना x नो कि ये y = 2x - 4 नु सैटिस्फाई करता पे है चौथे ऑप्शन को करो भाई है ना आगे पुट करके दे लो x नो 2 y नो 0 सेम एज दूसरा पॉइंट पुट करके दे दो तीसरा पॉइंट पुट करके दे दो चौथा पॉइंट पुट करके दे दो सारी इसमें सैटिस्फाई कर जाए
समझ सके ग्राफ पहला क्वेश्चन आपने सीखा ग्राफ बनाना सैकेंड क्वेश्चन आपने सीखा कि एक पॉइंट चों ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y equal 4 ग्राफ बनाना है और बना दो बहुत इजी है बोलो पहले x 0 पुट करेंगे y कितना हुआ x 0 पुट करेंगे y कितना हुआ 4 जब y 0 पुट करेंगे x कितना हुआ तो इसका ग्राफ कितना हुआ x 0 y 4 पूरे हुआ x 4 y 0 पूरे कितने हुआ देखिए ग्राफ समझ गई सेकंड क्वेश्चन तक लो x minus y equal to x minus y equal to x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੁआ x ਨੂੰ ਜੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ minus y ਕਿੰਨਾ ਹੁआ ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਹੁआ इसका ग्राफ देख लो x 0 y minus 2 पूरे कितने हुआ x 0 y minus 2 x 2 y 0 समथिंग पूरे हुआ x 2 y 0 ते मैं पूरा शॉर्टकट मारा पूरे x लिखोगे पूरे x डैश लिखोगे पूरे y लिखोगे पूरे y डैश लिखोगे पूरे 1 है पूरे 2 है पूरे 3 है -1 -2 1 2 3 ऐसे -1 -2 फिर उन्हें लाइन की इक्वेशन लिखोगे x minus y equal to 2 ये सारा ड्रामा करके दिखाना है समझ सके थर्ड इक्वेशन बोलियो x equal y equal to 3x y equal to 3x ਹੁਣ इसका टेबल देखो अगर x को 0 पुट कर दिया x को 0 पुट करेंगे y कितना हुआ 0 ਹੁਣ अगर x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ y ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ 1 ਤੇ 2 y ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੈ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 इधर y डैश -1 -2 -1 -2 इधर x डैश इधर 0 0,0 80 पॉइंट 1,3 80 पॉइंट 2,6 ये रहा पॉइंट ऐसे बना लो तो ये बनेगा y इक्वल टू ओके फोर्थ कीजिएगा 3 इक्वल 2x प्लस y फोर्थ केगा 3 इक्वल 2x प्लस y x को 0 पुट करेंगे y कितना हुआ x को 0 पुट करेंगे y कितना हुआ 3 जब y को 0 पुट करोगे अगर y को 0 पुट कर रहे हो तो x कितना हुआ 3/2 मतलब 1 पॉइंट समझ सके इसका ग्राफ चेक करो x की मैक्सिमम वैल्यू 1.5 1 2 पूरे 1.5 हुआ y की वैल्यू 3 है मैक्सिमम 1 2 3 x को 0 पुट करके y 3 है x को 0 पुट करके y 3 है x को 1.5 y 0 है इक्वल 2x प्लस फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सारे ਨੂੰ किसी डाउट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्यूशन फाइंड करनी है जस्ट लोकेट करना है लाइन ज्वाइन करनी है ग्राफ कर दिया ये कुछ कटना नहीं एक्सरसाइज से इजी सेकंड क्वेश्चन किया है हम
कहते गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ जो 2,14 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਜੋ 2,14 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਪਰੀ ਹਾਂਜੀ y x ਇਕੁਅਲ 12 शाबाश मतलब कोई इक्वेशन दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ 14 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਤਾਂ y x 12 ਕੋਈ ਹੋਰ शाबाश x y 16 जिन्नी मर्जी बोले चलो और कोई बोलो 7x y 7x y इन्होंने 2 कैसे अपने 3 फाइंड करती ते कहंदे किन्नियां हो सकदियां ने इनफाइनाइट हो सकदियां कहंदे 2,14 किस लाइन चो पास करूंगा 2,14 इस लाइन चो भी पास करूंगा इस लाइन चो भी पास करूंगा इस लाइन चो भी पास करूंगा मतलब ए वाला लाइन उस पॉइंट चो पास करूंगी ए वाला लाइन भी उस पॉइंट चो पास करूंगी ए वाला लाइन भी उस पॉइंट चो पास करूंगी ए वाला लाइन भी उस पॉइंट चो पास करूंगी किवें कितना मेनू पता है 2 + 14 कितना होता है 16 2 + 14 कितना होता है 16 ता x + y = 16 14 चो 2 माइनस कितना 12 मतलब y to x माइनस कितना 12 इनु 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਆ ਜਾਊਗਾ 7x = y इस प्रकार ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ थर्ड क्वेश्चन कहते हैं 3,4 लाई करता है 3y = ax + 7 ਉੱਤੇ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ कहते हैं 3,4 ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 4 x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 3 अगर 3,4 ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ 3,4 ਅਗਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋ y ਤਾਂ ਤੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 7 माइनस जाऊंगा y = 3 आ गया a = 5/, समझ में आई कहते 3,5 अगर ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਅਗਰ 3,4 ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ